ایک نظام ہے رشتے کا، اس کے اندر اینٹی وائرس زیادہ چلانا شروع کر دیں گے، رشتہ تو کھڑا ہی اعتماد کے اوپر ہوتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ شک اعتماد کا اپوزٹ ہے، تو جو ہی آپ نے شک کیا تو ایکچولی آپ نے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ ٹاکسیسٹی ہوتی ہے وہ اپنے ہی ہم ایکچولی پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ بچے آتے ہیں اور بچیاں آتی ہیں اور آ کر پتہ کیا کہتے ہیں، جی ہمیں شک ہے ہمارے پیرنٹس ہم سے پیار نہیں کرتے۔ ناظرین، رشتہ، محبت اور اعتماد یہ وہ بنیادی ستون ہیں جن پر ہر مضبوط رشتہ قائم ہوتا ہے، مگر جب ان رشتوں پر شک کا سایہ پڑتا ہے تو یہ ستون ہل جاتے ہیں، کیونکہ شک ایک ایسا جذباتی عمل ہے جو ازدواجی تعلقات، دوستی، والدین، بچوں اور بہن بھائیوں کے بھی رشتے میں دراڑ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ صرف ایک خیال اور احساس نہیں، بلکہ کبھی کبھار یہ رشتوں کے تانے بانے بھی توڑ دیتا ہے اور کبھی کبھار یہ تعلقات کی جڑوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ کہ رشتوں میں شک کی وجوہات کیا ہیں، اور کیا یہ صرف ایک جذباتی کیفیت ہے یا پھر کسی ذہنی بیماری کی علامت ہے؟ کیا شک پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ کیا تھیراپی کے ذریعے شک کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ماہر نفسیات ڈاکٹر کاشف فراز صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ رشتوں میں شک پیدا ہونے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، اور آگے چل کر یہی شک رشتوں کے لیے زہر قاتل کس طرح سے ثابت ہوتا ہے؟ جی بہت اچھی بات۔ رشتوں پر آنے سے پہلے دیکھنا پڑے گا شک ہے کیا۔ شک کے بارے میں سائیکالوجی کہتی ہے کہ شک دماغ کا اینٹی وائرس ہے۔ یہ جدید جنریشن کو سمجھانے کے لیے کہ جیسے اپنے موبائل ٹیب میں یا اپنے لیپ ٹاپ میں یہ اینٹی وائرس چلاتے ہیں، لیکن وہی اینٹی وائرس اگر پورے سسٹم کے اوپر قابو پا لے تو پھر آپ کا سسٹم یا تو بند ہو جاتا ہے یا سلو ہو جاتا ہے۔ بالکل تو یہ بھی ایسا اینٹی وائرس ہے کہ اس وقت تک تو بہت اچھا ہے جب تک یہ پازیٹیولی کام کرتا رہے۔ جو ہی یہ اوور کم کرتا ہے آپ کی پرسنالٹی کو، پری فرنٹل کارٹیکس کو، تو یہ ایکچولی ایک ایسا الارم ہے، سگنل ہے کہ اگر آپ اس الارم کو پازیٹیولی نہیں لیں گے تو یہ اتنا بجتا رہے گا کہ آپ کی سائیکولوجیکل، آپ کی سوشل، آپ کی ایموشنل، آپ کی جو فزیکل اور آپ کی جو اسپرچول ہیلتھ ہے، پانچوں ہیلتھ کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ تو اس وائرس کو سنبھالنا ہی سب سے بڑا کام ہے۔ ابھی جیسے آپ نے کویسچن یہ آپ نے بڑا ایک تو مثال آپ نے بڑی اچھی دی ہے، میں یہ ضرور یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا، اور پھر آپ نے بڑا اہم نقطہ اس میں کیا کہ خالی رشتے نہیں، اسپرچولی بھی، جی اسپرچولی بھی، اس لیے کہ دیکھیں اللہ پہ شک، اللہ قرآن میں کہتا ہے نا وسوسے ڈالنے والے، قل اعوذ برب الناس مالک الہ الناس من شر الوسواس، جو دلوں میں شر ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت 2 اور 5 میں کہتا ہے لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اللہ سورہ حجرات میں کہتا ہے جا کے آیت نمبر 6 میں۔ تو قرآن مجید میں 15 سے 20 جگہ ڈائریکٹ شک کا لفظ ہے، 50 سے 60 جگہ اس کی باقاعدہ یعنی اس کے میننگ یا اس کی کینوٹیشن آف دی ورڈ ہے۔ تو اللہ پہ شک یہ بھی تو روحانیت ہے، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے اخلاق کے اوپر، سیرت کے اوپر شک، تو روحانی بھی اس کے اندر پہلو آ جائے، اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا۔ جو آپ کا پرٹیکولر کویسچن تھا کہ رشتوں کے اندر شک، دیکھیں یہ وہی ہے کہ اگر آپ ایک نظام ہے رشتے کا، اس کے اندر اینٹی وائرس زیادہ چلانا شروع کر دیں گے، ہر بات پہ شک کریں گے، تو رشتہ تو کھڑا ہی اعتماد کے اوپر ہوتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ شک اعتماد کا اپوزٹ ہے، تو جو ہی آپ نے شک کیا تو ایکچولی آپ نے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ رشتے تو اعتماد کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، چند بول کے اوپر تو نہیں کھڑے ہوتے کہ آپ نے ایک پیپر کے اوپر لکھ دیا کہ یہ میری بیوی ہے تو وہ آپ کا رشتہ ہو گیا۔ اس کے اندر جو مین چیز ہے وہ تو اعتماد ہے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، مولانا رومی سے اس نے کہا کیا دریا کا پانی میری پیاس بجھا دے گا؟ مولانا رومی نے کہا پیاس پانی نہیں بجھاتا، اعتماد بجھاتا ہے۔ تو رشتہ تو اعتماد پہ کھڑا ہے، اس کی پیاس تو تب بجھے گی اگر آپ شک کو چھوڑ کے اعتماد کریں گے رشتے کے اوپر۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عموماً ایک سچویشن کی ابھی ہم بات کرتے ہیں، عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ شک کرتے ہیں نا، ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ کتنا ٹاکسک انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں اپنے پیاروں کے لیے۔ من ہی من میں وہ ان سے پیار ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ جو شک کا انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، بات بات پہ ٹوک رہے ہوتے ہیں، ٹاکسیسٹی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، نیگیٹو امپیکٹ بچوں پر، اپنی بیوی پہ کہیں نہ کہیں، یا بیوی اپنے ہسبینڈ پہ کر رہی ہوتی ہے، تو اس آدمی کو نہیں پتا ہوتا وہ کیا کر رہا ہے۔ تو کس طرح ہم، اور جب آپ ان کو پن پوائنٹ کرو تو بھی خطرہ ہے، رشتہ تب بھی خطرے میں ہے، تو کیسے اس کنڈیشن کو ہم کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو اس کو 2 جگہوں پہ تقسیم کر لیتے ہیں۔ پوری ورلڈ میں جہاں جہاں آپ اس ٹاپک کو پڑھیں گے، سسپیشس کہیں، ڈاؤٹ کہیں، اس کو جو بھی کہیں، اس کے اوپر 2 دنیا کی بڑی کتابیں ہیں۔ ایک امام غزالی کی کتاب ہے شک سے یقین تک کا سفر، ایک ڈاکٹر الیگزینڈر کی کتاب ہے۔ ڈاکٹر الیگزینڈر نے جو بات کی، جو ابھی آپ نے فرمائی ہے کہ ٹاکسک، وہ کہتا ہے جس انسان کے اندر جتنی کمی ہوتی ہے
उस कमी का अपोजिट करने के लिए वो उतना ही शक करता है। यानी जो मैं शक कर रहा होता हूँ बेसिकली मेरे अपने अंदर की डेफिशिएंसी है, मेरे अंदर के इश्यूज है, मेरे अंदर के प्रॉब्लम है, जिसे मैं खुद पे तो नहीं तारीख करना चाहता या मानना चाहता, वो मैं आप पे डाल दूंगा कि क्योंकि मेरे अंदर एक खौफ रखा है, लिहाजा आपके अंदर भी होगा। सो जो टॉक्सिसिटी होती है वो अपने ही हम एक्चुअली फैला रहे होते हैं। अब आपने जैसे कहा कि जैसे पॉइंट आउट करें, देखिए ऐसे ही है ना, जैसे मैं अपनी कमी खुद को बताना नहीं चाह रहा, आप मुझे मेरी कमी बता रहे हैं, जब मैं खुद से ही मुखलस नहीं हूँ तो आपकी बात मुझे क्यों अच्छी लगेगी, मैं क्यों पॉजिटिवली लूंगा उसको, मैं तो उसको और नेगेटिव कि मैं सोचूंगा इसको पता चल गया मेरी कमी का, कमी छुपाने के लिए तो मैं शक कर रहा था। यानी मैं अपने डेफिशिएंसी को हाइड करने के लिए तो आप पे शक कर रहा हूँ, आपके रिश्ते पे शक कर रहा हूँ। अब जब आपने ही पॉइंट आउट कर दिया तो मैं सोचूंगा मेरी टॉक्सिसिटी का, मेरी कमी का, मेरी डेफिशिएंसी को पता चल गया, तो अब तो मैं बिल्कुल ही ओपन हो गया हूँ, तो मैं उस शख्स को कभी पसंद। इसी वजह से जो ही आप उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, इसमें एक नफ्सियाती पहलू भी है। जितनी भी नफ्सियाती बीमारियां शक की वजह से हैं, जिसको हम पैरानोया कहते हैं, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, इनमें जब आप क्लाइंट को अपने क्लिनिक में कहते हैं ना कि ये वहम है आपका, तो वो डॉक्टर बदल लेते हैं। वो कहते हैं इनको तो पता चल गया कि मुझे इशू ही कोई नहीं, क्योंकि पता उनको भी होता है कि इशू कोई नहीं, मगर उन्होंने कहीं ना कहीं क्रिएट किया होता है। तो हम भी एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं सो दैट उसे ओवरकम कोई ना करे, हमें बताए ना। और एक शक करने वाला शख्स उस वक्त बड़ा ही खुश होता है जब उसके शक को आप यकीन समझ लें। उसके लिए हैप्पीनेस की इंतहा होती है। मतलब हमारे पास पेशेंट आते हैं क्लिनिक में, जब वो हमें कहते हैं कि मुझे एक रोज़ाना सुबह आकर कुछ जगाता है और वो जगाने वाली बड़ी खूबसूरत लड़की है, और हम उसे कहेंगे अच्छा, तो वो बहुत इंजॉय करता है। अगर जब हम कहते हैं नहीं ये आपका वहम है, वो कहता है डॉक्टर साहब नहीं आपको नहीं समझ आनी मेरी बात। तो शक को वो मनवाना भी चाहते हैं। डॉक्टर साहब तो ये बताएं कि ये फिर नफ्सियाती मसला है, कोई ज़हनी बीमारी है, और जिस तरह से आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि फिर एक आम शख्स किस तरह ये अंदाज़ा लगा सकता है कि ये जो एंटी वायरस है इसने मेरे पूरे सिस्टम को हैक कर लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। देखिए जैसे मैंने कहा कि दो किस्में, एक है हेल्दी डाउट जो साइंस में और तहकीक में ज़रूरी है। अगर वो नहीं हम करेंगे तो हम तो साइंटिफिक इजादात ही नहीं कर सकते, मैं कोई थ्योरी ही नहीं कायम कर सकता, मैं कोई ऐसी चीज नहीं लेके आ सकता सामने, दरियाफ्त नहीं कर सकता जिसमें मैं शक ना करूं। ये बहुत हेल्दी है, इसकी जरूरत है। एक है डिस्ट्रक्टिव, जिसकी तरफ आपने इशारा किया। डिस्ट्रक्टिव जो है वो वाकईतन आपकी बात ठीक है, एक नफ्सियाती बीमारी है, समाजी बीमारी है, रूहानी बीमारी है, जिस्मानी और जहनी बीमारी है, नफ्सियाती बीमारी, पांचों तरह की ये बीमारी है। अब देखना ये होता है कि जो शक करने वाला है वो इन पांचों में फॉल कहाँ पर करता है। हम ऐसे हमारे नफ्सियात कहते हैं कि इन पांचों की जड़ें नफ्सियात के अंदर हैं। कहीं बचपन में आपके साथ कुछ ऐसे वाक़यात हुए, माजी का इससे बहुत गहरा ताल्लुक है, कहीं ना कहीं आप ऐसे परेशान हुए, कहीं ना कहीं ऐसे दुख मिले, कहीं ना कहीं ऐसी आपको एनवायरनमेंट या माहौल मिला, महरूमियाँ हैं आपकी, मसाइल हैं आपके, भूख है आपकी, गुर्बत है आपकी, अच्छा सलूक ना होना आपका, रिश्तेदारों के साथ आपको रिजेक्शन मिलना, कहीं फादर रिजेक्टिव बिहेवियर, मदर एक्सेप्टिंग बिहेवियर, ये भी होता है। माएँ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती हैं, बाप बहुत ज़्यादा रिपेल करते हैं। अपोजिट भी हो रहा है, पैराडाइम शिफ्ट भी आ रहा है, आजकल बाप बहुत अटैच है, माएँ बहुत दूर रखती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक शख्स के अंदर शक की फ़िज़ा पैदा करती हैं। उस वक्त आपकी बात ठीक है, जब इस तरह का माहौल हो और वाकई उसको नफ्सियाती हेल्प चाहिए हो, तो वहाँ माहिर नफ्सियात की मदद की बहुत ज़रूरत होती है। अब माहिर नफ्सियात क्या करेगा, वो कभी भी उसको फौरी तौर पे शक को ख़त्म नहीं करेगा, उसे डिल्यूट करने की कोशिश करेगा। अगर मैं कोशिश करूँ कि आपका शक ख़त्म करने बैठा हूँ तो मैं आपको कभी ठीक नहीं कर सकता। मैंने आपके अंदर से शक पैदा हुआ है। डॉक्टर वर्नन कॉलमैन एक बड़ी प्यारी बात करते हैं, वो कहते हैं अगर मेरा दिमाग मुझे शक्की कर सकता है तो मेरा ही दिमाग मुझे ठीक भी कर सकता है। तो एक्चुअली मैंने सीबीटी में क्या करना है, सीबीटी एक थेरेपी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। उसमें मैंने क्या करना है कि आपको जिस तरह की फिजा में शक कर रहे हैं उससे अपोजिट फिजा देनी है ताकि आप शक दूर कर सकें। फैसला आपने करना है, मैंने नहीं करना। तो वो आप थेरेपी उसकी करें, काउंसलिंग करें, मेडिटेशन करें, टैपिंग करवाएं, अरोमा थेरेपी, ये कई तरीके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये मसला जो है डायल्यूट हुआ वक्ती तौर पर और फिर दूसरी सिचुएशन के अंदर दोबारा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, तो उस सूरत हाल में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? आपकी बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन इस लिहाज से कि जब हम उन पेशेंट को ठीक करके भेजते हैं तो महीने 2 महीने बाद दोबारा वो आ जाते हैं, उसे हम रेजिड्यूअल टाइप कहते हैं। उसका प्रॉब्लम ये होता है कि दोबारा वही इन्वायरमेंट वो ऑप्ट कर लेता है जिस इन्वायरमेंट की वजह से वो वायरस को चिमटा होता है। तो इसके लिए हम जब उसको ठीक करके भेजते हैं उसे एक बात कहते हैं कि अपनी इन्वायरमेंट बदलो। एक बहुत खूबसूरत इटली की रिसर्च है, दैट इज कॉल्ड मिरर न्यूरॉन। मिरर न्यूरॉन ये कहते हैं कि आप जो सोच रहे होंगे और जो कर रहे होंगे
वो बिना सोचे और किए मुझ पर असरअंदाज हो जाएगा, मेरे मिरर न्यूरॉन। यानी कि मैं किसी को करते देखकर भी उस तरह का सोचना और करना शुरू कर दूंगा, चाहे इनके साथ ये बीत रही है तो मेरे साथ भी, जिसको एम्पैथी कहते हैं। डॉक्टर साहब, अब इसी पे ये एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि जरा हमें ये भी बता दें, बल्कि सवाल नहीं, आपका एक्सपीरियंस, हम जो आपके जो माशाल्लाह करियर के दौरान आपने कोई इस तरह के एक्सपीरियंस शेयर करें कि महज मामूली से शक की बिना पर आपने कोई बहुत बड़े नुकसान होते हुए देखे हो, क्योंकि लोग इनसे सीखते हैं इस तरह की स्टोरी से। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस वक्त हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है मियाँ बीवी के दरमियान शक, और बच्चों और पेरेंट्स के दरमियान शक, बहन भाइयों के दरमियान शक, उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते जो कि बहुत ही मुअज़्ज़ज़ रिश्ता था। बच्चियाँ आती हैं, टीचर आते हैं, टीचर आकर कहते हैं जी फलां फलां बच्ची जो है वो मुझे इस तरह से मैसेज कर रही है, वो सारे और सारा शक होता है, वो ख्याल होता है उनका, सिर्फ वहम होता है उनका। बच्चियाँ भी कह रही थी हमारे टीचर जो है वो हमें नंबर देने के लिए ये कह रहे हैं। जब हम उसकी थोड़ी सी गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि सारा शक है। जो आपने मिसाल दी, ऐसी ऐसी ख़वातीन आकर कहती हैं कि जी मेरा हस्बैंड जो है वो पहले अच्छे कपड़े नहीं पहनता था, परफ्यूम नहीं लगाता था, हंसता नहीं था, अब जी वो चेंज हो गया है। अगर उसने खुद को बदल लिया तो ये भी नुकसान तो ये भी नुकसान है। अच्छा, जब हस्बैंड से हम बात करते हैं, क्योंकि हम फैमिली थेरेपी, तो वो कहता है कि सर मैं अब जाता हूँ किसी जगह काम पे, मेरा काम बड़ा है, तो मैंने देखा मुझे अच्छा लिबास पहनना है, अच्छे लोगों से मिलना है, पहले मेरा बिजनेस इतना नहीं था, अब मेरा बिजनेस है, मल्टीनेशनल कंपनी, तो सर मैंने चेंज किया। ये कहती है नहीं वो दफ्तर में है। सर उसकी वजह से बाकायदा डिवोर्स होने के बाद हमारे पास लोग आए। जब हमने उनसे कहा कि आपने डिवोर्स देने से पहले क्यों नहीं हमसे बात की, उन्होंने कहा डिवोर्स देने के बाद एहसास हुआ हमें कि हम तो बहुत गलत फैसला। वो शुक्र ये है कि 3 माह से पहले वो आ गए और उसको रुजू करने गुस्से में, जज्बाती सूरत हाल में वो चीज आपने कर दी। यहाँ तक भी हुआ, आप हैरान होंगे जो आपने कहा छोटी सी बात, इस बात के ऊपर बीवी को डिवोर्स दे दी कि शादी में तुम मेरे कजन से हंसकर बात कर रही थी। ओह माय गॉड। अच्छा, उसने कहा मैं सबसे हंसकर बात कर, उसने कहा सबका मसला नहीं, उस कजन का इसलिए मसला कि जब मेरा रिश्ता तुम्हारे घर आया था तो इसका रिश्ता भी आया था, तुम उससे हंस के बातें कर रही हो। तो वो जब उसको डिवोर्स दी तो वो खातून नफ्सियाती मरीज हो गई। वो आई और उसने कहा सर मेरे 2 बच्चे हैं, इसमें से मेरा कोई तल्लुक नहीं उसके साथ था। मैंने कहा अब मुझे अब बताइए कि आपने डिवोर्स ले लिए, अब आप आई हैं, अब उसको ठीक कर। उसने कहा सर मुझे ये इशू नहीं है कि वो मेरा हस्बैंड नहीं रहा, मुझे इशू ये है कि उसका शक खत्म होना चाहिए। उसने इस इल्जाम पे मुझे क्यों छोड़ा। तो ये देखिए कितनी छोटी छोटी सी बातें। बच्चे आते हैं और बच्चियां आती हैं और आकर पता क्या कहते हैं, जी हमें शक है हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार नहीं करते, मेरे फलां बहन भाई से बहुत करते हैं। अब होता क्या है, वो बहन भाई हो सकता है कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई एंकर हो, कोई मशहूर, एक बच्चा जो है वो नहीं, तो वालिदैन का एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है। डॉक्टर साहब, ये जो भी आपने बात की ना, बच्चों और वालिदैन के दरमियान भी शक पाया जाता है, डेफिनेटली ये बड़ी नई बात है और बहुत ही पेचीदा भी है, दुख भरी बात भी है। मियाँ बीवी का तो चलो समझ आता है कब से चला आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का, बहुत अच्छा लगा जो आपने हमें कॉन्सेप्ट दिया, नफ्सियाती बीमारी को एक्सप्लेन किया, साथ ही साथ जहनी बीमारी भी हमारे साथ डिस्कस की।